सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 25 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, सुप्रीम कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कुछ प्राइवेसी लॉस को लेकर सख्ती दिखाई और कहा है कि कैन नॉट कॉपी एक्सेस कंटेंट फ्रॉम लैपटॉप मोबाइल फोन्स। इसके अलावा अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं एनएचआरसी के नए अध्यक्ष। आगे देखते हैं और क्या आर्टिकल्स आए हुए हैं आज के पेपर में। लीव द किड्स अलोन एक आर्टिकल है दिल्ली गवर्नमेंट को टारगेट करते हुए सिटीजनशिप टेस्ट को लेकर, जिस जिसको लेकर ऑथर ने कहा है कि इन सब चीज़ों से बच्चों को दूर रहना चाहिए। कहीं ना कहीं आप उनकी फीलिंग्स को भी हर्ट कर सकते हैं। द क्लासरूम मस्ट बी सेफ प्लेस, द स्कूल इज वेयर चिल्ड्रन लर्न टू ओवरकम द डिविजन्स that mark broader society, not deepen them from electoral gains. Of course, illegal migration is a fraud issue, and any government that runs the national capital has to address it. It needs a policy response at several levels, including working in concert with the central government, whose mandate is to secure borders. School children cannot be the first port of call to address it. A border can be policed, a classroom must not be. यही कहा है कि स्कूल तो एक शिक्षा का केंद्र होता है, लोग सीखने के लिए जाते हैं, एक अच्छा माहौल होता है, उसे भी आप पॉलिटिकल बना देंगे तो बात ही क्या रह जाएगी। अगला अगला आर्टिकल माननीय प्रधानमंत्री जी का है अटल बिहारी वाजपेयी जी को संबोधित करते हुए। Disallowed and repeated claims of health insurance rise 17.1% to रुपीज 26,000 क्रॉस। इंश्योरेंस क्लेम्स और रियम्बर्समेंट्स को लेकर तो बड़ी समस्या चल रही है आज की तारीख में। अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर सीज 13% वेज ग्रोथ, L1 1.1 क्रॉस न्यू जॉब्स इन 2024। अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर लोगों को पे क्या है कि नौकरियां तो इतनी मिल नहीं रही हैं, तो अपना खुद का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक्सप्लेन पेज पे बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है एडेप्टेशन को लेके और कैसे इसका इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का पड़ रहा है। छोटा सा क्विक देखेंगे व्यू इसको हम। The year 2024 was when the world all about gave up on its effort to restrict global warming within 1.5 degrees Celsius from the pre-industrial average. One of the key goals of 15 Paris Agreement on climate change, ironically, 2024 is also set to emerge as the year when the annual average global temperature breached the 1.5 degrees Celsius threshold for the first time. There's nothing sacrosanct about the 1.5 degree threshold. The devastating impacts of climate change have already begun to play out at much lower levels of warming. When the world had agreed on 1.5 degree target in Paris Agreement as something worth pursuing in addition to the main 2 degree goal, it was under impression there was sufficient time on hand. After all, the temperature rise had not hit the 1 degree mark at all time. However, the planet has warmed at a much faster rate after that, and the absence of any meaningful climate action during this time has meant that 1.5 degree target is well beyond reach now. अब तो बहुत आगे जा चुकी है कहानी क्लाइमेट चेंज को लेके, वैसे ही हम लोगों ने इतना ढीला कर दिया। और धीरे धीरे जो हमारी क्लाइमेट चेंज बॉडीज़ हैं, इनकी समिट्स होती हैं, इनका सिग्निफिकेंस भी ख़त्म ही होता जा रहा है, क्योंकि ये लोग खुद अपने आप को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। In its most recent report, the IPCC, a UN affiliated body that advances scientific knowledge about climate change, said the world needed to cut its annual greenhouse gas emissions by at least 43% from 19 levels by 30 to keep alive hopes of achieving the 1.5 degree goal. But current climate actions, which every country says is the best effort, are projected to deliver barely a 2% reduction in the best scenario by that time. और ओवरऑल अभी कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं दिख रहा है जिससे हम ये कह सकें कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन हमें भविष्य में 2030 24 40 सॉरी 30 40 35 में देखने को मिलेगा।
Tepid response. The response has been far more commensurate and is only likely to weaken further, with the US President Trump widely expected to walk out of the Paris Agreement once again. और ट्रम्प साहब तो वैसे ही पहले कह चुके हैं, भैया मुझे इन तो समिट से कोई मतलब है नहीं, पेरिस हो या लंदन हो, मैं ऐसे क्लाइमेट समिट पर हिट नहीं करूँगा, मुझे अपना फॉसिल फ्यूल जलाना है दबा के. Developed countries have not fulfilled any of their commitments on emission cuts, on finance, or on technology transfer, and there is nothing to be done about that. और जितने बड़े देश हैं उन लोगों ने अभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं ली है एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर. This is one reason why a new ICJ case has created so much excitement, particularly among the developing countries. The case still being heard seeks advisory opinion of the ICJ on the obligation of countries on climate change. इवन कि देखिए डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कोर्ट केस तक कर दिया कि डेवलप कंट्रीज जिम्मेदारी लें, खुद तो अपना फॉसिल फ्यूल जला जला के अपने आप को इतना विकसित कर दिया है, अपने आप को डेवलपमेंट के नई नई राहों पे ले गए हैं, मगर अब जब क्लाइमेट चेंज की बात आ रही है तो सारी जिम्मेदारी छोटे देशों पर छोड़ दी है कि भैया अरे तेल मत जलाओ, कोयला मत जलाओ, ये मत करो वो मत करो. तो अपना तो आपने मौज काट ली है, तो उसको कंपनसेट भी तो करिए. इसी आर्टिकल और इस ग्राफ में आपके बहुत चीज़ समझाने का प्रयास करा है. ईयर इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल एवरेज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस ईयर ऑन ईयर इन मिलियन टन्स. अगला आर्टिकल क्रिसमस को लेके आप पढ़ लीजिएगा. इसी के साथ आज के लिए रखते हैं. अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फिर आएंगे नई वीडियो के साथ. जुड़े रहिए, वेबसाइट को भी विजिट करते रहिए करंट अफेयर्स के लिए, और बेहतर जगह कहीं नहीं मिलेगी आपको. थैंक यू.